तो फ्रेंड्स, कल हमने कंक्लूड किया था कि इट इज़ नॉट एन इशू ऑफ कास्ट, इट्स एन इशू ऑफ पॉवर्टी. एंड इंटरेस्टिंगली हिंदुस्तान टाइम्स में अगेन पार्ट 2 हैज अपीयर्ड एंड डिटो you can say. But before that, I want to tell you about an article or a news item in Economic Times. Economic Times में एक item है, will caste based survey lead to both inclusion and exclusion. बहुत सारी important information है इसमें. अम्बेडकर क्या कहते हैं? Annihilation of caste में कहा है उन्होंने. You cannot build anything on the foundations of caste. You cannot build up a nation. You cannot build up a morality. Anything that you will build on the foundations of caste will crack and will never be a whole. Ambedkar hoped that when the rural population migrates to the urban areas and as people get educated, employed, there will be a dilution of the caste system and the rise of a more egalitarian system. Actually, the major conflict between Gandhiji's views and Ambedkar was the same. Gandhiji opted for Gram Swaraj. He was not in favor of big urbanization as a whole, while Ambedkar thought that it is the urbanization only that will decrease the disparity, whether it is within the stratum or across the strata. Then, unfortunately, this is not happening. The tragedy is that those who swear off in the name of Ambedkar also use caste to further their vested interests. Divisions in society are deepening with deepening of the caste system. Caste armies surrounding rural areas in many northern states are a common sight. Ambedkar thought that urbanization will decrease the casteism, but it has not happened. Marx had once said that India will never progress because of the caste. But ironically, India has progressed also and caste is there still. Kaka Kalerkar, chairman of the first backward class commission, in the covering letter of the report addressed to the president, pleaded for the rejection of report as reservation recommended on the basis of caste would not be in the interest of society. He said caste should be eschewed altogether. हटा देना चाहिए कास्ट को पूरी तरह से. दिस इज व्हाट इज एनविसेज इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो. वी शुड स्ट्राइव फॉर अ कास्टलेस सोसाइटी. वी शुड, किसी ने कोई कोशिश नहीं की. इट इज ऑन पेपर ओनली. वी आर क्रिएटिंग डिविजन्स एंड फर्दर डिविजन्स. आई हैव ऑलरेडी सेड in a video that they created caste and tribe, or after independence we created OBC and then we created EBC also. जो रिकमेंडेशन थी 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, it is already breached. But it all depends on how Supreme Court interprets. Further, Baba Sahib Ambedkar in the constitutional debates has stated that if reservation is to be consistent with the sub-clause 1 of Article 10, it must be confined to a minority of the seats. This view was laid down by the Supreme Court in Indira Sani case that reservation should be confined to minority of seats. अब ये minority of seats 49% minority होता है, 51% majority हो जाता है. माइनॉरिटी जो है वो विजिबल माइनॉरिटी होनी चाहिए, और अब तो वो भी इग्नोर किया जा रहा है. सो वेदर कास्ट रिजर्वेशन इट हैज सर्व्ड अ पर्पस और नॉट. कंटिन्यूइंग फ्रॉम आवर डेलिब्रेशन ऑफ यस्टरडे, जो हमारी कल वाली वीडियो थी वो मेरे एक दूसरे चैनल पे, वैद्स नई बात नई शुरुआत एक चैनल है, उस पे थी. अब ये उसका सेकंड पार्ट जो है ये आप देख रहे हैं. ये क्या कह रहा है? While these numbers clearly establish a link between caste and economic status, it will be a big mistake to assume that caste is the only structural factor driving economic inequality in India. Here are some of the charts. Number 1, average upper caste household in Bihar are poorer than SC households in Tamil Nadu.
I think it's a shocking revelation. So how will you justify reservation for upper caste or lower caste based on the caste? The census is there, the survey is there, and this is based on family survey 2021-22. Then second, rural urban factor in caste based economic inequality. Obviously urban people, they are more advanced irrespective of caste. आप इसमें देखिए 1745 है रूरल में, अर्बन में 2967, अर्बन में 2967 है। इधर में देखिए अदर्स में 2452 है, इधर 4160 है। होल ऑफ इट इफ यू लुक एट इट, ऑन एन एवरेज urban people, whether they are SCs or STs or OBCs or ABCs, तो रूरल अर्बन में डिवाइड करोगे या अमीर गरीब में डिवाइड करोगे या कास्ट टाइप पे डिवाइड करोगे, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ डिवीजन? हालांकि पॉलिटिशियन समझेंगे नहीं, उनको पॉलिटिक्स से मतलब है, आपके उससे मतलब नहीं है। देन यू हैव इंट्रा ग्रुप इनइक्वालिटी विद इन सोशल ग्रुप। ये डाटा जो है ये बता रहे हैं हाउस होल्ड एसेट्स एज ऑन जून 30, 2018, हाउस होल्ड MPSC मीन पर कैपिटा एक्सपेंस 2021-22, सोर्स अगेन PLFS 21-22। हाउस होल्ड एसेट्स कितनी है STs में, SCs में, OBCs में और अदर्स में, कितना डिफरेंस है इन सब में गिनी कोएफिशिएंट में? हाउस होल्ड MPC आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है, घर पे ज़्यादा खर्चा होता है पर हेड, बट ओवरऑल जो है एसेट्स उसमें कितना फर्क नजर आ रहा है? सो व्हाट जस्टिफिकेशन यू हैव फॉर डिवाइडिंग इंडिया इनटू द कैटेगरीज? द कैटेगरीज you already know, these are colonial constructs. SC category is a colonial construct, ST category is a colonial construct, and our constitution makers, what Ambedkar said, reservation for a period of a decade. और अम्बेडकर अगर होते तो things should have been different. मैं हमेशा कहता आ रहा हूँ कि आप एक स्ट्रेटजी को लेके चल रहे हैं, नहीं चल रही अगर वो स्ट्रेटजी तो यू हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी। ये जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हमने फॉलो किया है, मैंने कल भी कहा था, अगर आपको लगता है कि बढ़िया चल रहा है देन लेट इट बी, लेकिन जिन लोगों को बेनिफिट हुआ है ओनली दे विल से दैट इट इज डूइंग वेल। वास्ट मेजॉरिटी, कल भी मैंने कहा था, 1/3 से ज्यादा ओबीसीज को जरा भर भी बेनिफिट नहीं हुआ। So what kind of model it is? The time has come when we have to change ourselves. You may have to change constitution for that. But in any case, ये जो divisions हो रही हैं, divisions फिर further divisions, आप सोशल मीडिया को देखिए कितने डिवीजन हैं तब पता लगता है। अगर आपको डिविसिव फोर्सेस को अगर आपको कंट्रास्ट करना है तो एक ही तरीका है, ये सारी कैटेगरीज जितनी भी आप क्रिएट कर रहे हैं ये सब आपको ख़त्म करनी पड़ेंगी। इकोनॉमी के बेस पे मैंने बताया भी था, रिजर्वेशन अगर देना ही है, अगर नहीं देना कैसे नहीं देना, आई हैव अ वीडियो मस्ट रिजर्वेशंस गो एंड आई हैव गिवन द होल स्टेजेस आल्सो हाउ यू कैन डू इट, मैक्सिमम 2 जनरेशंस। फिर भी अगर देना है तो जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं उनको दो, जो बड़े बड़े धन्ना सेठ SC ST में हैं जो अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में पढ़ाते हैं, जो DPS मथुरा रोड में पढ़ते हैं फिर सेंट स्टीफन्स में पढ़ते हैं, उनको किस बात का रिजर्वेशन? इसी तरह से जो अपर कास्ट के लोग हैं जो नहीं अफोर्ड कर पाते फिर बच्चों को स्कूल सरकारी स्कूल में भेजते हैं, इससे एक तो रिजर्वेशन का बेनिफिट सही लोगों को मिलेगा और दूसरा हमारे एजुकेशन सिस्टम सुधर जाएगा। अगर कलेक्टर के बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ेंगे जिस स्कूल में डोमेस्टिक हेल्प की बेटियां पढ़ती है तो ऑब्वियसली क्वालिटी तो सुधरेगी सुधरेगी। उससे जो हमने राइट टू एजुकेशन की बात की है कि स्टूडेंट टीचर रेशो क्या होना चाहिए वो भी सुधर जाएगी, स्टूडेंट्स की हेल्थ भी सुधर जाएगी, एजुकेशन तो सुधरेगी सुधरेगी, कुल मिलाकर के पूरा माहौल सुधरेगा देश का।
ये हिंदुस्तान टाइम्स जो है हमारी ही बात को सपोर्ट कर रहा है आज का। तो मैं चाहूँगा कि कम से कम एक डिबेट शुरू होना चाहिए। मुझे पता है नहीं होगा, पर फिर भी कोशिश तो करनी चाहिए। Sir, the thing that you are telling, everyone should go to government school. Still, the rich people, they will have the advantage of putting their students in coaching, giving them the extra edge, and they will again be able to corner the cream of the reservation. So, देखो, पहले तो मैं अगर आईएएस कोचिंग की बात करूं, कितना रिजल्ट होता है इंस्टीट्यूट का, कोचिंग क्या करती है। आप कोटा में जो जा रहे हैं, जो रिजल्ट आ रहा है आप देख रहे हैं, सुसाइड जिस रेट से बढ़ रहे हैं वो भी पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि 12 साल लगातार अगर बच्चा सरकारी स्कूल में जा रहा है, ये बेनिफिट तो हैव्स को रहेगा ही, दैट यू कैन नॉट रूल आउट। पर अगर स्कूल एजुकेशन सुधर जाती है, कई स्कूल ऐसे हैं जो सरकारी स्कूल हैं और लोग चाहते हैं कि अपने बच्चों को हटा करके प्राइवेट स्कूल से सरकारी में करें, और कर भी रहे हैं, ऐसा सिस्टम हो भी रहा है। मैंने पहले ही कल भी कहा था कि हेल्थ और एजुकेशन जो है, दिस शुड बी द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। sir, I meant to say that the people who have financial advantage, they will still be able to corner, like you told, 0.3% of OBCs, they are cornering the best of the reservations. Similarly, the people in government school who have the ability to go into coaching, they will be better enlightened, and they again will be able to corner the reservation in their favor. देखो, पहली बात तो ये कि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है, जो स्कूल सिस्टम जो है, जब आप करिकुलम बदलेंगे, जाहिर है कि आप उसमें प्ले ग्राउंड का भी फैसिलिटी रखेंगे, जाहिर है उसमें आप बच्चों की न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखेंगे, और वो जो बेनिफिट है इकोनॉमी का, वो तो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि फास्ट फूड की वजह से आपको पता है दिल्ली के गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स में 50% बच्चे ओबीस कैटेगरी में हैं, और सरकारी स्कूलों के 50% बच्चे अंडर निवेश्ड हैं। न्यूट्रिशन जो है, पता है हमें, टीवी एड भी बताते हैं 5 साल की उम्र तक 90% डेवलप हो जाता है, 6 तक 95 हो जाता है। न्यूट्रिशन का अगर हम केयर करते हैं, मैं ऑलरेडी रिकमेंड कर चुका हूँ हॉट ब्रेकफास्ट को, अगर मेंटल ग्रोथ है तो ये सारी चीज़ें मायना नहीं रखेंगी, वो तो तब भी फास्ट फूड खाएंगे ही खाएंगे, ओबेसिटी तो होगी ही होगी। और लोअर क्लासेस के जो लोग हैं, दे विल बिकम मोर अवेयर, मोर कॉशियस अबाउट देयर स्टेट एंड देयर करियर, कि उनको आगे बढ़ना है, ये पता लगेगा। मैं ये नहीं कहता कि डिस्पैरिटीज खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी कम से कम।